Hello friends, welcome to Gulbarga Coaching Academy. Today we are going to deal with another video related to the psychology. As you know that the various state government has announced the notification for the sake of teachers eligibility test. So for the sake of fulfillment of that kind of a need of an aspirant, today we are going to deal with a psychology concept as a first part of the psychology, a KTET or other CTET or other APTET or other CTET. So the first we are going to deal with psychology. So we are not going to deal with the exact first the concept of the syllabus that is prescribed, but we have to go with the basic things related to the psychology. Here the psychology means in different things. In Urdu it is called as ilm nafsiyat. तो यहाँ पर हम बात करते हैं ilm nafsiyat. So first thing is related to the meaning. So what is the meaning of the psychology? If you go to the etymological meaning of the psychology, the term psychology is derived from the two words psyche and logos. Psyche and logos, two Greek words with a Greek word. Two Greek word psyche and logos. Psyche means soul. Psyche means soul. Psyche means soul, and another is logos means study, which together means study of soul. Psychology means the study of soul. इल्म नफ्सियात में भी उनका मुताला अगर उसके मीनिंग के एतबार से देखते हैं तो etymological meaning is related to the study of soul. So psychology is the study of soul. Study of soul. So psychology, why is psychology called as the study of soul? So various kind of a concept are there. अलग-अलग तरह की यहाँ पर जो है बातें बताई गई हैं. Before the psychology, before we call as psychology, psychology was one of the most part of the philosophy. साइकोलॉजी का जो ओरिजिन हुआ है, साइकोलॉजी की जो शुरुआत हुई है, वो साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी वो फिलॉसफी से. फिलॉसफी का एक पार्ट माना जाता था साइकोलॉजी को. जब बहुत सारे ग्रीक जो है साइकोलॉजिस्ट ने, फिलोसोफर्स ने इस पर रिसर्च किया, स्पेशली सॉक्रेट है, एरिस्टोटल है, प्लेटो है, इन लोगों ने जब रिसर्च किया, उसके बाद फर्दर जो रिसर्च हुए अमेरिका, रशिया, इसी तरह जर्मनी, ये अलग अलग जगहों पे जो रिसर्च हुए, वो रिसर्च के एतबार से ऑन द बेस ऑफ दैट रिसर्च वी कैन सी दैट साइकोलॉजी वाज द ब्रांच ऑफ ए फिलॉसफी. फिलॉसफी का हिस्सा था. सो philosophical human interest is also considered as a psychology. In ancient time, जब हम एथेंस एंड स्पार्टा ग्रीक सिटीज की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि साइकोलॉजी वाज द पार्ट ऑफ द फिलॉसफी. साइकोलॉजी फिलॉसफी का पार्ट था. उसके बाद हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में क्या एवोल्यूशन हुआ, साइकोलॉजी जो है किस तरह से डेवलप हुई. साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आज साइकोलॉजी एज ए साइंस भी कहा जा रहा है. साइंटिफिक साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक मेथड ऑफ साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कैसे ओरिजिन हुआ, उससे बिफोर हम एक साइकोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं. अगर हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉक्रेट फ्रॉम द 470 BC to 399 BC, he was one of the Greek philosopher, psychologist. सॉक्रेट जो है इस पीरियड में जो है एक बहुत बड़ा जो है साइकोलॉजिस्ट था. उसने जब रिसर्च किया फिलॉसफी पर, तो उसको जो है साइकोलॉजी के रूप में एक अलग जो है एक कॉन्सेप्ट सामने आया. तो अकॉर्डिंग टू हिम साइकोलॉजी, सबसे पहले साइकोलॉजी को जो है सोल, स्टडी ऑफ सोल कहने वाला, ये रूह का मुताला है, ये हमारी जो है आत्मा है, उसको पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था दुनिया को, वो सबसे देने वाला है सोक्रेट है. सोक्रेट ने जो है, जिसको सोक्रात उर्दू में कहते हैं, सोक्रेट ने कॉन्सेप्ट दिया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल. व्हाइल वी डील्स विद द अनदर साइकोलॉजिस्ट, हिज नेम इज द प्लेटो. प्लेटो ने कहा कि स्टडी ऑफ माइंड. In the year 387 BC, he said that it is the study of the mind. And after that, Aristotle 335 BC, he said that the psychology is the study of art. Psychology is the study of art. And after the Sigmund Freud, he propounded the concept of the theory of psychoanalysis. He said that psychology is the study of psychological psychoanalysis. The next, after that, the J.P. Watson and other people presented a concept of the behaviorism. उससे हटकर जो है कि हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट
pragmatism है, अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर है. Fechner of Germany, he promoted the concept of the sensory experiences. His first theory, that is the sensory experiences, in year 1854. After him, the another is that Wilhelm Wundt, the first laboratory he founded a first laboratory. First laboratory में जो है Wilhelm Wundt जर्मनी ने फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी. उसके बाद अमेरिकन फर्स्ट लेबोरेटरी बनी 1883 में. तो फर्स्ट जो है लेबोरेटरी बनी थी हॉकिंस यूनिवर्सिटी में अमेरिका में. उसके बाद जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी बनी, वो था 1892. उसके बाद अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट पर अलग अलग जो कॉन्सेप्ट देते हुए रिसर्च किया. तो नाउ मॉडर्नली वी कैन से दैट द father of psychology is considered William Wundt, and another in case the father of the modern psychology is considered the Sigmund Freud. Sigmund Freud को मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है. बात करते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. व्हाट डील्स विद द साइकोलॉजी कंटीन्यूअस प्रोसेस. उससे हटकर अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी डील्स विद द ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करती है. कंटीन्यूअस प्रोसेस है. जब से हम बात करते हैं वर्ल्ड के जो फेमस जो सिविलाइजेशन थे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये अलग अलग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है. तो ये अलग अलग सिविलाइजेशन का जैसे ओरिजिन हुआ, उसी के साथ ही ये साइकोलॉजी का भी ओरिजिन हुआ. ये कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि विद द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ वी कैन से दैट द बिगिनिंग ऑफ द साइकोलॉजी. इल्म नफ्सियात की जो बुनियाद हुई वो जो है इसी के साथ हुई. और ये कहते हैं कि इल्म नफ्सियात एक मुसलसल अमल है. जब तक इंसान जिंदा है, ये एनिमल जिंदा है, ये अलग अलग तरह के जो उनकी से है साइकोलॉजी शुरू हुई है. डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है. साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसी तरह एनिमल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है. तो ये अलग अलग साइकोलॉजी से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो हमारे पास आए हैं. प्रैग्मेटिज्म है, अलग अलग तरह का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर है. फॉर एग्जांपल जेबी वैटसन की बात करते हैं. जेबी वैटसन है, बीएफ स्किनर है. ये लोगों ने बिहेवियरल साइकोलॉजी पर, यानी जो बर्ताव, इंसान के बर्ताव पर बहुत सारा रिसर्च किया. बिहेवियरल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट दिया था. यहाँ पर जेबी वैटसन एंड जॉन बी वैटसन और इसी तरह बीएफ स्किनर है. उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की. वही मैं कह रहा था कि साइकोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस हैं. ह्यूमन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अलग अलग तरह के जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस की साइकोलॉजी है. तो उन्हीं के लिए जो है अलग अलग उन्हीं की साइकोलॉजी. फॉर एग्जांपल चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट जिसने किए वो था स्टैनली हॉल. ही इज फ्रॉम अमेरिका, स्टैनली हॉल. तो इसीलिए इसको जो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा गया. स्टैनली हॉल को फादर ऑफ साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं. फादर्स ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पर मैं फादर्स ऑफ साइकोलॉजी इसलिए कह रहा हूँ कि अलग अलग फादर्स ऑफ साइकोलॉजी हमारे पास हैं, लेकिन बेसिकली द फादर ऑफ साइकोलॉजी इज विलियम वुंड एंड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्राइड को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है. एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर्स के जितने भी एस्पेक्ट हैं, ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, ह्यूमन बिहेवियर है, एवरीथिंग दैट डील्स विद द ह्यूमन परफॉर्मेंस, ह्यूमन माइंड है. इसी तरह ये विजडम कॉन्सेप्ट है, ये सब आएगा एस्पेक्ट ऑफ यानी साइकोलॉजी, नफ्सियात की पढ़ाई में शामिल होगा. इंसानी रवैया, इंसानी बिहेवियर और इंसानी किरदार, इंसानी जिंदगी, इंसान की जितनी भी जिंदगी में आने वाले पहलू में जिसका कनेक्शन माइंड से है, जिसका कनेक्शन बिहेवियर से है, जिसका तो ये पूरी चीजें आएंगी इसके अंदर आएंगी. इट्स कॉल्ड एज द एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी. सो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ साइकोलॉजी से हमें इससे हटकर भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं कि ऑर्डर द एस्पेक्ट फ्रॉम द birth to death that is related to the human development that comes under the psychology. तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है. तो नेक्स्ट क्लास में जो है इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजी के जो रिलेटेड है, स्पेशली टीईटी एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जैक्ट जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उस पर मैं जो है एग्जैक्ट वीडियो बनाऊंगा. ये फर्स्ट जो है ये चैप्टर डालने का, ये फर्स्ट जो है कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के क्लियर करने का कॉन्सेप्ट. इसके पीछे एक ही रीजन है कि बेस रूट ऑफ साइकोलॉजी आप सभी को समझ में आए. तो थैंक यू फॉर द दिस वाचिंग फॉर दिस वीडियो. सब्सक्राइब माय चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी and forward this video to all peoples and the aspirant of the Karnataka Teachers Ability Test and the all state other state eligibility test. Thank you.